Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a video on the topic of observing telescopes Class 9 Science Maharashtra State Board. This informative article explains the basic concepts and principles of observing telescopes, their variants, and usage. Students can learn about refracting telescopes, reflecting telescopes, applications of telescopes, and much more. Observing telescopes assist in the study of planetary atmospheres, provide valuable information about the formation of galaxies, and lend a helping hand in the search for extraterrestrial life. The article provides a detailed explanation of how observing telescopes function and their practical applications. Students can also learn about the history of telescopes and their contribution to astronomical research. This article serves as a valuable resource for students studying Class 9 Science under the Maharashtra State Board curriculum. It will help them comprehend the importance of observing telescopes in scientific research. The article also highlights how the invention of telescopes revolutionized our understanding of the universe and the impact it has on modern-day science and astronomy. Overall, the knowledge-explanatory article on observing telescopes will aid students in developing a basic understanding of telescopes and their usage, providing a strong foundation for further scientific studies. Okay, people, we are talking about, or rather this chapter would be about telescopes. So what are telescopes? Telescopes वो instruments होते हैं जिनसे हम भाई साहब दूर दराज की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? So telescopes are those instruments from where we see far off places, ठीक है? बहुत दूर दराज की चीज़ों को देखते हैं. क्या क्या हम पढ़ेंगे यहाँ पे? Different forms of light, telescopes and types of telescopes, telescopes in space, Indian space research and satellites, and chapter finally at a glance. Different forms of light. तो light आपका क्या होता है भाई साहब? एक electromagnetic wave होता है. Now what do we mean by electromagnetic wave? Light basically उसका एक electrical component भी है और उसका एक भाई साहब magnetic component भी है. That's the reason it is known as electromagnetic wave. दरअसल सन से या कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलते हैं और लाइट जो है उसका बहुत ही स्मॉल सा हिस्सा है. लाइट इज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके एक्स रेज आते हैं, कॉस्मिक रेज आते हैं, रेडियो वेव्स आते हैं जिसपे भाई साहब आपका इंटरनेट और सेल फोन टेक्नोलॉजी है, ठीक है? देन वी हैव कॉस्मिक रेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर, ठीक है? एंड लाइट हैपेंस टू बी अ वेरी स्मॉल पार्ट. हमको लगता है लाइट ही सब कुछ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लेकिन लाइट बहुत ही स्मॉल पोर्शन है, ठीक है? सो लाइट आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. एवरी वेव हैज अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ. अभी वेवलेंथ क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज बेसिकली वेवलेंथ? सो व्हाट इज बेसिकली आपका वेवलेंथ? तो अगर आप देखोगे भाई साहब वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है? किसी भी वेव का जो लेंथ होता है, ठीक है, इट्स लाइक दिस कि अगर आपका भाई साहब ये जा रहा है ऐसे, दिस इज बेसिकली वेवलेंथ. ये हो जाएगा भाई साहब आपका वेवलेंथ. दिस पोर्शन इज नोन एज वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा, ठीक है? सो दिस विल बी वेवलेंथ और इस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? लैम्डा, ठीक है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जहां कवर होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ. दैट इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है? ओके, सो दैट इज बेसिकली नोन एज वेवलेंथ. So every wave has a characteristic wavelength. Our eyes can see only that light which has wavelengths between 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर. तो आपका ये जो 400 नैनोमीटर से, तो आप देखो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्ट्स हैं ये.
रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस, गामा रेज, ये सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट हैं। ये सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इसका बहुत छोटा सा हिस्सा आपका विजिबल लाइट है। इस विजिबल लाइट का भाई साहब वेवलेंथ कहां से कहां तक है? 400 nm, nm मतलब नैनोमीटर, टू 800 नैनोमीटर। ठीक है, विजिबल लाइट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इसका भाई साहब कहां से कहां तक है? 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ठीक है, ओके, सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, microwaves, infrared, ultraviolet, X-rays, gamma rays, and visible light happens to be a very small portion. ठीक है, such light is called visible radiation. There are electromagnetic waves which have wavelengths other than the visible ones. तो आपके electromagnetic waves को छोड़कर दूसरे भी waves हैं जिनके other wavelengths है। The type of electromagnetic waves are, क्या क्या electromagnetic waves है? Radio waves, microwaves, infrared waves, visible light rays, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays. तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल लाइट को छोड़कर ये तमाम चीजें जो हैं भाई साहब आपके रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये तमाम अलग अलग रेज टाइप हैं। ठीक है, क्लियर है? वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो रेडियो वेव्स का भाई साहब क्या है? दे आर लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर। वेवलेंथ आपका भाई साहब लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर है। माइक्रोवेव्स कहां से कहां तक है भाई साहब? 0.3 मिलीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इंफ्रारेड कहां से कहां तक है? 800 नैनोमीटर टू 0.3 मिलीमीटर। विजिबल लाइट रेज 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ये आपका जो सेक्शन है विजिबल लाइट रेज, इसी से हमारी दुनिया उजागर है। हम सब कुछ देख पा रहे हैं सिर्फ इस विजिबल लाइट रे के वेवलेंथ की वजह से। अल्ट्रावायलेट रेज का भाई साहब कहां से कहां तक है? 300 पिकोमीटर टू 400 नैनोमीटर। एक्स रेज भाई साहब 300 पिकोमीटर टू 3 पिकोमीटर टू 300 पिकोमीटर। गामा रेज का आपका शॉर्टर देन 3 पिकोमीटर है। ठीक है, नीड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स बनाए जाते हैं। इन टेलीस्कोप से हम सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब दोज बॉडीज विच आर लोकेटेड इन द स्पेस। ठीक है, आवर आईज आर ओनली केपेबल ऑफ सीइंग द विजिबल रेडिएशन। ठीक है, thus we use the visible radiation telescopes, that is optical telescopes made from regular lenses or mirrors to see the visible radiation coming from the space. ठीक है, तो हमारा आइज क्या देख सकता है भाई साहब? विजिबल रेडिएशन टेलीस्कोप, दैट इज ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स मेड फ्रॉम रेगुलर लेंसेज और मिरर्स। तो ये रेगुलर लेंसेज और मिरर्स से बने हुए होते हैं टू सी द विजिबल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम स्पेस। तो स्पेस से आते हुए विजिबल रेडिएशन को हम भाई साहब इसमें देखते हैं। ठीक है, many heavenly bodies such as stars, galaxies, planets etc. emit radiations other than visible light. तो बहुत सारे आपके heavenly bodies होते हैं, जैसे आपका stars हो गया, sun हो गया, they have their own light. ठीक है, heavenly bodies such as stars, galaxies, planets etc. कुछ planets emit radiations other than visible light. तो इनमें से radiations निकलते हैं visible light के सिवा। Thus we need different types of telescopes like X-ray, gamma ray and radio telescopes to receive such radiation and to study their sources. ठीक है, ओके, सो टेलीस्कोप्स भाई साहब, लाइट इज अ डैश वेव। किस टाइप का वेव हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, 400 मिलीमीटर टू 800 मिलीमीटर। तो 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ठीक है, ओके, कंप्लीट द एनालॉजी। रेडियो वेव्स इज लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर, दिस इज शॉर्टर देन 3 पिकोमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा? गामा रेज। गामा रेज विल बी शॉर्टर देन 3 पिकोमीटर। ठीक है, नेम द टेलीस्कोप दैट यूज द विजिबल रेडिएशंस एमिटेड बाय हेवनली बॉडीज। ठीक है, सो दीज आर नोन एज ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। दीज आर नोन एज ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स एंड टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स। ऑप्टिकल टेलीस्कोप बेसिकली होता क्या है? देखो, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स आर मेड यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। हम एक कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर एंड अ लेंस। 3 चीजों से बनता है, 4 चीजों से बनता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और एक लेंस। इन 4 चीजों से भाई साहब आपका ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनता है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। एक होता है भाई साहब आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आई होप रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर क्लियर। रिफ्लेक्शन इज व्हाट? रिफ्लेक्शन इज बेसिकली एक लाइट है जो एक सरफेस पे इंसिडेंट है और रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और the turning back of light into the same medium in which it came from is called reflection. और refraction क्या होता है? When light passes from one medium to another transparent medium, it bends.
तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जा रहा है, लेट्स से वाटर हो गया, या भाई साहब आपका एयर हो गया, या आपका भाई साहब कोई गैस हो गया, या आपका ग्लास हो गया, तो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ओके, गैलीलियो वाज द फर्स्ट टू मेक यूज ऑफ लेंसेज टू ऑब्जर्व द स्पेस बियॉन्ड द पार्ट विजिबल टू द नेकेड आई. So this was basically made by Galileo. Galileo made a telescope in 1609 and using it discovered the moons of Jupiter, the black spots on the sun, etc. तो ये सब भाई साहब उसने डिस्कवर किया, ठीक है। He used refracting telescope for this purpose. तो इसके लिए उसने क्या यूज किया? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भाई साहब होता क्या है? The optical telescopes are made with 2 or more lenses. तो आपके 2 लेंसेज होते हैं ऐसे, ठीक है। They are made with 2 or more lenses. एक हो गया आपका सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा हो गया आपका आई पीस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हो गया आपका आई पीस, ठीक है। सो ये आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। टू कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ हेवनली ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल. तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस भाई साहब क्या होने चाहिए? दे शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल टू कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट. तो ज्यादा से ज्यादा लाइट किससे आवे? जिसको हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ हेवनली ऑब्जेक्ट. अभी हेवनली ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई साहब? किसी स्टार को आप देखने की कोशिश कर रहे हो, किसी भाई साहब प्लैनेट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सैटेलाइट को देखने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल दीज आर हेवनली ऑब्जेक्ट्स. सो टू कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ हेवनली ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। यूजिंग द लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव, अ स्मॉलर लेंस कॉल्ड आई पीस produces a large image of the source, ठीक है। तो एक स्मॉलर सा लेंस होता है जिसको हम आई पीस बोलते हैं, और ये एक लार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लाइट रेज चेंज द डायरेक्शन एज दे एंटर अ लेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड अगेन व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो लाइट रेज भाई साहब क्या हो रहे हैं? अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, अगेन व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन. इस प्रोसेस को हम भाई साहब बोलेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। Just one moment, people. ठीक है, so using the light collected by the objective, a smaller lens called the eyepiece produces a larger image of the source, ठीक है। तो using the light collected by a objective, a smaller lens called eyepiece, इसको हम eyepiece बोलेंगे, ठीक है, produces a larger image of the source. हाँ, नोइस हो ही जाओ भाई साहब, ठीक है। Light rays change the direction as they enter a lens from the atmosphere and again when they enter the atmosphere after passing through the lens, और इसी को हम भाई साहब क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन. देखो लेंस से पास हुए, ऐसे आए, अगेन दे आर पासिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन. हेंस सच टेलीस्कोप्स आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स. डिफिकल्टीज क्या है भाई साहब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को यूज करने में? ठीक है, पहला भाई साहब आपका ओके, सो इफ वी, तो डिफिकल्टीज भाई साहब क्या है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के? अगर आपको एक ब्राइट इमेज चाहिए किसी सोर्स का, ठीक है, if we need to obtain a bright image of a source by collecting the maximum possible light from it, उससे maximum possible light collect करके the objective lens may be made as large as possible. तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा भाई साहब होना चाहिए, और अगर हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने जाएंगे तो भाई साहब टेलीस्कोप ये लंबा मोटा सा हो जाएगा. कोई कहीं भी आप लेकर जाओगे इतना भारी भरकम टेलीस्कोप लेकर घूमना पड़ेगा आपको, ठीक है. सो इफ वी नीड टू हैव और कलेक्ट more light from the celestial body which you are trying to observe, then the telescope has to measure, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसका भाई साहब ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बढ़ाना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज अगर हम बढ़ाएंगे तो भाई साहब टेलीस्कोप बढ़ जाएगा, ठीक है. इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स लार्ज लेंसेज आर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड आर वेरी हैवी, ठीक है. दे टेंड टू गेट डिस्टॉर्टेड. तो भाई साहब ये डिस्टॉर्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है. Since objective and eyepiece are placed at the opposite ends of telescope, the length of the telescope also increases, which makes it difficult to handle. ठीक है, तो आपका लेंथ भी बढ़ जाता है, मतलब इधर भाई साहब eyepiece है, इधर ऑब्जेक्टिव है, तो लेंथ भी आपका टेलीस्कोप बढ़ रहा है. और क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाइट कलेक्ट करना है सेलेस्टियल बॉडी से, तो आपका ऑब्जेक्टिव का जो है तो साइज बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए भाई साहब आपका ब्रेथ भी बढ़ जाएगा, डायमीटर भी बढ़ जाएगा, ठीक है. सो दिस विल इंक्रीज द साइज. The images produced by refracting telescopes have errors of colors known as chromatic aberration. तो refracting telescope से जो images produce होते हैं उनमें कलर के errors होते हैं थोड़े बहुत. मतलब ग्रीन कलर का कोई celestial body में कोई पॉइंट होगा तो वो शायद आपको थोड़ा सा डार्क दिखेगा, ठीक है. So these types of errors are known as chromatic aberration. So the errors that are observed in refracting telescopes are that of color, and that is known as chromatic aberration. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स पे आते हैं. दे लुक समथिंग लाइक दिस. ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है.
द टाइप ऑफ ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स मेजरली यूज्ड, ठीक है, मेजरली यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो यहाँ पे भाई साहब अलग अलग टाइप के मिरर्स यूज हो रहे हैं, मिरर्स आर गेटिंग यूज, ठीक है, मिरर्स आर गेटिंग यूज। तो आपका भाई साहब एज लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर्स द टेलीस्कोप्स आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इस टाइप के टेलीस्कोप्स को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो आप देखो भाई साहब ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स मतलब कहां से आ रहा है, हेवनली बॉडी से। तो ये लाइट सोर्स आया, एक कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करता है, कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे एक मिरर ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसा लगा रहेगा। ये मिरर पे गिरा तो ये भाई साहब ऐसे गया, अभी यहाँ पे आई पीस है, देखो आई पीस से ये कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको भाई साहब कॉनकेव मिरर पे लाइट को, तो क्या क्या आप यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या क्या यूज हो रहा है, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर एंड आई पीस। सो दीज विल बी नॉट दैट ग्रेट इन साइज, क्योंकि आपके रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ये वाला लेंस चाहिए होगा, यहां पे इतना नहीं चाहिए, इतने में ही बात बन जाएगी, ठीक है, ओके। इट यूजेस अ कॉनकेव मिरर, अ प्लेन मिरर एंड अ आई पीस। तो इसका मतलब आप क्या यूज कर रहे हैं, दो मिरर्स और एक लेंस, ठीक है। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द स्पेस आर रिफ्लेक्टेड बाय द कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होते हैं। बिफोर दीज रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज एट द फोकस दे आर डिफ्लेक्टेड अगेन बाय अ स्मॉल मिरर। तो ये फोकस पे कन्वर्ट जो इसके पहले डिफ्लेक्ट हो जाते हैं एक स्मॉल मिरर से, ठीक है, दे आर डिफ्लेक्टेड अगेन बाय अ स्मॉल मिरर। एज अ रिजल्ट दे गेट फोकस एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप सिलेंडर। तो यहाँ पे भाई साहब आपके फोकस हो जाते हैं। तो ये आया लाइट, इस पे गिरा और यहाँ पे आकर भाई साहब फोकस हो गया, ठीक है। They pass through the eyepiece and get a magnified image of the source। तो ये eyepiece से पास होकर भाई साहब एक मैग्निफाइड इमेज हो जाता है, ठीक है। चलो ना भाई साहब, क्या हो गया, अटक गए तुम भाई साहब, अरे यार बहुत प्रॉब्लम है। ओके, सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया। न्यूटोनियन टेलीस्कोप है, ये लाइट सोर्स है, कॉनकेव मिरर है, प्लेन मिरर है, इस पे लाइट गिरने के बाद भाई साहब ये ऐसे आ रहा है तो ये आपका हो गया आई पीस, ठीक है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये यूजेस कॉनकेव मिरर, अ प्लेन मिरर एंड अ लेंस। Light rays coming from the space are reflected by the concave mirror. Before these reflected rays converge at the focus, they are deflected again by a small plane mirror. As a result, they get focused at a point. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो ये फोकस हो रहे हैं और ये इसके फोकस पे है, तो यहाँ से भाई साहब इसका, ठीक है, आई पीस से हम देख रहे हैं। As a result, they get focused at a point lying in the perpendicular axis of the telescope's cylinder. ठीक है, they pass through the eyepiece and get a magnified image of the source. तो हमको एक बड़ा इमेज दिख जाता है सोर्स का, ठीक है। कैसग्रेन टेलीस्कोप भाई साहब कैसा है, देखो यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर यूज नहीं हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, ठीक है। एंड यू बेसिकली हैव अ कॉनकेव मिरर जो बीच में से कटा हुआ है और एक आई पीस है, ठीक है। सो व्हाट आर द, इट यूजेस अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉनकेव मिरर एंड अ लेंस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड अ लेंस। The light rays after reflection from the convex mirror are reflected back towards it by a small convex mirror, ठीक है। तो लाइट रेज आए, कॉनकेव मिरर में स्ट्राइक किया और फिर कहां पे गए, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर पे यहाँ पे फोकस हुए और ये आई पीस रखा हुआ है जहां से भाई साहब ये मैग्नीफाइड होकर निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, इस पे हो रहा है रिफ्लेक्शन और इस पे भी हो रहा है रिफ्लेक्शन। मिरर पे हमेशा रिफ्लेक्शन होगा और ऑब्जेक्टिव या आई पीस पे हमेशा रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों भी प्रोसेसेस हो रहे हैं। द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ठीक है, आर रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स इट बाय अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, एक स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। दे पास थ्रू अ होल एट द सेंटर ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड देन थ्रू द आई पीस सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द मिरर। द आई पीस गिव्स अस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सोर्स। तो आई पीस से भाई साहब आपको एक मैग्नीफाइड इमेज मिल जाता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स क्या क्या है भाई साहब आपके। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का सिंपल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पे बेनिफिट क्या हो जाएगा, पहला बेनिफिट क्या हो जाएगा बोलो, आर यूज्ड टू ओवरकम डिफिकल्टीज यूजिंग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। पहला बेनिफिट है साइज का, ठीक है। अगर प्योर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होगा तो बहुत बल्की हो जाएगा साइज में एंड विल बी डिफिकल्ट टू कैरी, लेकिन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में आपका साइज कम होगा, ठीक है, द साइज विल बी मच लेसर। इट इज इजियर टू मेक लार्ज मिरर्स एज कंपेयर टू मेक लार्ज लेंसेज। तो पहली बात तो भाई साहब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में आप मिरर्स भी यूज कर रहे हैं और लेंसेज भी। रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में आप सिर्फ लेंसेज को यूज कर रहे हैं।
लेंसेज बनाने थोड़े डिफिकल्ट हैं rather than mirrors, ठीक है। तो मिरर्स कैन बी मेड मोर इजिली देन लेंसेज। ओके, द वेट ऑफ अ लार्ज मिरर इज लेस देन दैट ऑफ अ लेंस ऑफ द सेम साइज। अगर आप एक मिरर देखोगे, उसका जो समझ लो एक लार्ज मिरर है, कोई लार्ज सा मिरर है और उसी साइज का आपने भाई साहब लेंस भी ले लिया है, आपको लेंस ज्यादा भारी पड़ेगा, ठीक है, उसका वेट ज्यादा होगा। द इमेजेस फॉर्म बाय मिरर्स डू नॉट हैव एरर्स ऑफ कलर। तो मिरर से जो इमेजेस फॉर्म होते हैं उनमें कलर के एरर्स नहीं रहते हैं। इस कलर के एरर को हम क्या बोलते हैं काव्या? व्हाट इज द कलर एरर दैट इज फाउंड इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स नोन एज? मनस्वी, दीपिका, मैंने 3-4 बार इस टर्म को बोला है पढ़ाते वक्त, आप लोग नहीं है भाई साहब यहाँ पे। मैं बोल रहा हूं ना, इट्स अ वेरी फ्रेजाइल अटेम्प्ट फ्रॉम माई एंड। जिस दिन आपको ये पता चलेगा ना कि आपका किया गया काम बिल्कुल सार्थक नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज, आपसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड इंसान कोई नहीं होगा, और मैं हूं, क्योंकि ये क्राउड है यहाँ पे। आपके जीवन में वो दिन दूर नहीं है जब आपके तमाम कोशिशों के बावजूद रिस्पॉन्स नहीं है वैसा। आप और दीवार में कोई फर्क नहीं है। इससे अच्छा तो भाई साहब यूट्यूब में लाइव पढ़ाऊं, शायद कोई इंसान सुन ले जिसको जरूरत हो, आपको जरूरत नहीं है। क्रोमैटिक एबरेशन, अभी तो हमने भाई साहब इस टर्म को 2-3 बार बोला। क्रोमैटिक एबरेशन, कलर का जो डिफॉल्ट होता है, आप नहीं है भाई साहब यहाँ पे। मेरे तमाम कोशिशों के बावजूद आप यहाँ पे नहीं है, यू आर सिंपली नॉट देयर। और मैं इस चीज को कैसे कवर करूं, आई डोंट नो। कोई पेरेंट आके मेरे सामने खड़ा होता है ना भाई साहब, मैं तो सिंपल बोलने वाला, ब्लास्ट करने वाला हूं मैं, क्योंकि ना आपके पेरेंट्स आते हैं, मेरे को मैसेजेस आते हैं भाई साहब रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। अरे कैसे आएगा भाई साहब, कोई मैजिक है यहाँ पे? फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कहां से आएगा? अरे भाई एंटरटेनमेंट चल रहा है भाई, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, यहाँ भी बढ़ गया वैसा, वैसे रील देख रहे हैं यहाँ पे कोई। हाँ, ये चीज आपको ना हॉन्ट करेगी, मैं बता रहा हूं आपको। आपके जीवन में भी ऐसे, जब आप किसी और के कंट्रीब्यूशन को पूरा नजरअंदाज करते हैं, एक जो इंसान पढ़ा रहा है भाड़ में गया, इस तरह का एटीट्यूड लेकर जब आते हैं, आप भी कोई काम करेंगे जिसमें 50 लोग बैठकर बोलेंगे भाड़ में जाए। The day is not far, it is going to come back in your life, take my words for it। और उस दिन आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, शायद मुझसे भी ज्यादा। मेरा प्रोफेशन है कि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता, मेरा फ्रस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, लेकिन आपका शायद वो प्रोफेशन ना हो, तब अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालेंगे आप। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन इसी चीज का होता है कि आप जब किसी चीज को बड़े पैशनेट तरीके से करवा रहे हैं, लेकिन लोगों को पड़ी नहीं है भाई साहब, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स डू नॉट हैव एरर्स ऑफ कलर। तो आपके भाई साहब मिरर टेलीस्कोप्स में कलर के इमेजेस हमको नहीं मिलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? क्रोमैटिक एबरेशन, ठीक है। ओके, रेडियो टेलीस्कोप एक होता है भाई साहब। रेडियो टेलीस्कोप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप यूज्ड टू रिसीव रेडियो सिग्नल और वेव्स एमिटेड बाय हेवनली बॉडीज। तो इस तरह से भाई साहब रेडियो वेव्स आता है और यहाँ पे भाई साहब ये कलेक्ट होता है, ठीक है। आपका जो डिश एंटीना होता है इसी चीज पे चलता है, ठीक है। आपका जो इंटरनेट सिग्नल्स होते हैं इसी पे चल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। एक बड़ा सा डिश एंटीना होता है जहां पे रेडियो सिग्नल्स होते हैं, और इस एम्पलीफायर से ये आपके कंप्यूटर, ये एम्पलीफायर क्या करता है? सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, मतलब सिग्नल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है। दे इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ। एक वाईफाई राउटर भी एक टाइप का एम्पलीफायर है, वो सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर डिशेस ऑफ अ पर्टिकुलरली पैराबोलिक शेप। तो इस टाइप का जो शेप है आपको दिख रहा है, दैट इज बेसिकली पैराबोलिक। इन रेडियो टेलीस्कोप द इंसिडेंट रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय दीज डिशेस एंड कन्वर्ज एट द फोकस। तो आपके रेडियो वेव्स हैं जो भाई साहब कन्वर्ज हो रहे हैं फोकस में, ये रिसीवर है भाई साहब, और यहां से ये सिग्नल्स एम्पलीफाई होकर आपके सिस्टम्स में जा रहे हैं। So in radio telescope, the incident radio waves are reflected by these dishes and converge at the focus where radio receiver is placed. The information gathered by this receiver, ये जो receiver है वो information को gather कर रहा है, is passed on to a computer which analyzes it and constructs an image of the source. ठीक है, ये जो signal है ये एम्पलीफायर से स्ट्रेंथन होता है और एक कंप्यूटर में पास होता है, और उसी कंप्यूटर में भाई साहब इसको आप एक रेगुलर इमेज बना सकते हैं, ठीक है।
GMRT दैट इज जायंट मीटर वेयर रेडियो टेलीस्कोप। तो ये बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, ठीक है, जायंट मीटर वेयर रेडियो टेलीस्कोप। GMRT is a radio telescope which uses radio waves having wavelength of about 1 meter coming from heavenly bodies। रेडियो वेव्स के जो वेवलेंथ होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, मतलब नैनोमीटर्स में होते हैं, सेंटीमीटर्स में होते हैं, मीटर्स में होते हैं। ऐसा कोई भी वेवलेंथ जो 1 मीटर का हो भाई साहब, यहां से लेकर यहां तक एक वेव बन रहा है, देखो ऐसा, ठीक है, ऐसे रेडियो वेव्स को भाई साहब GMRT हैंडल करता है, ठीक है। सो GMRT इज जायंट मीटर वेव। आप देखो यहां पे नाम से ही पता चल रहा है, मीटर मतलब ऐसे रेडियो वेव्स जिनका वेवलेंथ 1 मीटर हो, जायंट मीटर वेव, बहुत बड़े वेवलेंथ्स होते हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बहुत बड़े वेवलेंथ्स होते हैं, ठीक है। So these are basically very big. So GMRT is a radio telescope which uses radio waves having wavelength of about 1 meter. तो इनका भाई साहब वेवलेंथ 1 मीटर का होता है। हेलो, हाँ बोलिए ना। सो GMRT एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है जो क्या करता है भाई साहब, ऐसे रेडियो वेव्स जिनका भाई साहब क्या है, वेवलेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू और मोर देन 1 मीटर, ठीक है, हैविंग वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1 मीटर कमिंग फ्रॉम हेवनली बॉडीज। GMRT is located at Narayan near Pune. It is a collection of 30 dishes, each having a diameter of about 45 meter. This collection of 30 dishes is spread across an area measuring up to 25 kilometer. तो लगभग 25 किलोमीटर तक ऐसे 30 डिशेस लगे हुए हैं, ठीक है। इनका डायमीटर देखो भाई साहब कितना है, 45 मीटर, 45 मीटर का भाई साहब इनका डायमीटर है, ठीक है, ह्यूज साइज स्विमिंग पूल की तरह है, ठीक है। दीज आर लाइक ह्यूज साइज स्विमिंग पूल्स। तो GMRT मतलब ये उन रेडियो वेव्स को कैच करता है जिनका वेवलेंथ इज मोर देन और इक्वल टू 1 मीटर्स, ठीक है। सो GMRT इज अ रेडियो टेलीस्कोप। ये आपका रेडियो टेलीस्कोप है, पुणे में लोकेटेड है, और पुणे में ऐसे 30 डिशेस हैं जो अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर के एरिया पे लोकेटेड है, ठीक है। इट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट वर्क्स एज अ सिंगल डिश ऑफ 25 किलोमीटर डायमीटर, दस कॉल्ड एज अ जायंट टेलीस्कोप। तो ये एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, इट्स नोन एज अ जायंट टेलीस्कोप। इस तरह से ये डिजाइंड है, ठीक है, 25 किलोमीटर डायमीटर। GMRT इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर विंड्स, पल्सर्स, सुपरनोवा, इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड्स एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को यूज में लगता है, ठीक है। GMRT इज यूज्ड टू स्टडी ऑब्वियसली सोलर सिस्टम, सोलर विंड्स, पल्सर्स, सुपरनोवा जो आपके भाई साहब स्टार्स होते हैं, इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड्स एक्सेट्रा। टेलीस्कोप्स इन स्पेस, visible light and the radio waves emitted by the heavenly bodies in space can pass through the earth's atmosphere and reach the earth's surface, ठीक है। तो visible light भाई साहब and radio waves, visible light और radio waves जो heavenly bodies से रिलीज होते हैं, ठीक है, they can pass through the earth's atmosphere and reach the earth's surface. Therefore optical telescopes and radio telescopes can be situated on the surface of the earth. तो जितने भी आपके ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हैं, रेडियो टेलीस्कोप्स हैं, उनको हम अर्थ पे इसीलिए सिचुएट कर सकते हैं क्योंकि जो विजिबल लाइट हमको मिल रहा है सेलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए, वो भाई साहब एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हम तक पहुंच सकते हैं, है ना। Okay, therefore optical telescopes and radio telescopes can be situated on the surface of the earth. However, these earth-based telescopes present some difficulties in producing good quality observations, ठीक है। डिफिकल्टीज क्या है भाई साहब, ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। तो आपके ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स और रेडियो टेलीस्कोप्स दे आर प्लेस्ड ऑन अर्थ, ठीक है, दे आर प्लेस्ड ऑन अर्थ, लेकिन इनके कुछ डिफिकल्टीज हैं। क्या है भाई साहब, सम ऑफ द विजिबल रेज कमिंग फ्रॉम हेवनली बॉडीज आर अब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। कुछ भाई साहब एटमॉस्फेयर खा जाती है, एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब कर लेती है, हेंस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रीचिंग द सरफेस डिक्रीजेस। तो ये जो विजिबल रेज हैं जो आपके डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज से अर्थ तक पहुंच रहे हैं, अ पार्ट ऑफ इट इज अब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड हेंस आपको जो इमेज मिलेगा इन ऑप्टिकल या रेडियो टेलीस्कोप से, दैट विल नॉट बी एन एक्यूरेट इमेज, ठीक है, इट विल नॉट बी एन एक्यूरेट इमेज। ओके, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। अभी देखो एटमॉस्फेयर हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है, ठंडी के टाइम पे भाई साहब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, भाई जब आंधी तूफान चलती है तो प्रेशर में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो ये सब भी भाई साहब क्या करता है, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉजेज द लाइट रेज टू चेंज देयर पाथ स्लाइटली एंड डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। जैसे देखो आप समझ लो ये आपका एक बाल्टी पानी है और उसमें आपने एक कॉइन रखा हुआ है, आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। अभी भाई साहब आपने पानी में उथल पुथल कर दिया तो कॉइन भी भाई साहब ऐसा लगेगा कि उथल पुथल हो रहा है, एक्चुअली में नहीं हो रहा है ना।
तो क्या कॉइन का इमेज डिस्टर्ब हो रहा है? पानी के डिस्टर्बेंस से क्या कॉइन का इमेज डिस्टर्ब हो रहा है? हो रहा है। आपने यहाँ पे टेलीस्कोप लगाया और किसी सेलेस्टियल बॉडी को देख रहे हैं, ठीक है, बीच में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में भाई साहब आंधी तूफान चल रहा है, तो क्या भाई साहब उसका इमेज भी आपका डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, इट विल, ठीक है। सो दैट्स व्हाट कॉजेज द, तो चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर causes the light rays to change their path slightly and disturb the position of the image, ठीक है। Optical telescopes cannot be used during daytime because of sunlight. सनलाइट के चलते आप डे टाइम में इसको यूज नहीं कर सकते, सिर्फ नाइट टाइम में यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग नाइट सिटी लाइट्स एंड क्लाउडी वेदर कॉज डिफिकल्टीज इन ऑब्जर्विंग द हेवनली बॉडीज। आज की तारीख में आपके भाई साहब सिटी लाइट्स इतने ज्यादा हैं, ठीक है, वो भी भाई साहब देखो, हम सनलाइट को अवॉइड करने के लिए ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप को नाइट में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाइट में भी आज की तारीख में ज्यादा करके जो हाईटेक सिटीज है वहां पे इतना ज्यादा लाइट है कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स का इमेज डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज वन ड्रॉबैक दैट ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स है। These difficulties can be overcome by optical telescopes should be situated on the top of mountains in uninhabited places. तो माउंटेन्स के ऊपर इनका सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि भाई साहब जो शहर के लाइट्स हैं, सिटी लाइट्स कैन नॉट डिस्टर्ब इट, ठीक है, तो माउंटेन्स के ऊपर या बहुत बड़े ऊंचे जगहों के ऊपर इनका पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। अनइनहैबिटेड प्लेसेस मतलब जहां पे मनुष्य ना रहता हो, जहां पे भाई साहब लोग ना रहते हो, क्योंकि लोग रहेंगे तो लाइट का यूजेज होगा, और लाइट का यूजेज होगा तो इमेजेस डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट अ ब्राइट एंड क्लियर इमेज, टेलीस्कोप शुड बी प्लेस्ड अबव द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, दैट इज इन स्पेस। अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए कि अगर आपको प्रॉपर इमेज चाहिए सेलेस्टियल बॉडीज का, सो टेलीस्कोप शुड बी प्लेस्ड अबव द स्पेस, स्पेस के ऊपर होने चाहिए, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर होने चाहिए, इन द स्पेस। टेलीस्कोप्स इन स्पेस, हबल टेलीस्कोप है भाई साहब, इट इज एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप व्हिच इज लोकेटेड इन स्पेस। आपके भाई साहब स्पेस में ये हबल टेलीस्कोप लोकेटेड है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है। इट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा ने इसको लॉन्च किया था 1990 में, और आज की तारीख में हमारे लिए बहुत बड़े इंफॉर्मेशन का सोर्स है, नासा ने इसको लॉन्च किया था। इट हैज अ मिरर ऑफ डायमीटर 94 इंचेस and is orbiting the earth at a height of 589 किलोमीटर from it। तो अर्थ के अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर ऊपर ये हबल टेलीस्कोप है, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड बाय नासा। चंद्रा टेलीस्कोप, इट इज एन एक्स-रे टेलीस्कोप इन द स्पेस, ठीक है, इट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इन 1999। इट इज यूज्ड टू स्टडी एक्स-रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम हेवनली बॉडीज। सो हेवनली बॉडीज से जो एक्स-रेज निकलते हैं उनकी स्टडी इससे होती है, ठीक है। ओके ओके, स्पेशल मिरर्स व्हिच कैन रिफ्लेक्ट एक्स रेज आर यूज्ड इन दिस टेलीस्कोप। तो आपके भाई साहब कुछ स्पेशल मिरर्स इसमें यूज हुए हैं जो एक्स रेज को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली यूज्ड। ओके, द टेलीस्कोप इज नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। Check your grasp. Okay, reflecting telescopes preferred over refracting telescopes because the images formed by mirrors do not have colors of error. The images formed by lenses do not have colors of error. किसमें colors of error होता है? Image formed by lenses और mirror? By lenses, जिसको हम chromatic aberration भी बोलते हैं, ठीक है। So images formed by mirrors do not have colors, error colors, ठीक है। The final image is produced by the dash in optical telescope, objective or eyepiece? Eyepiece, okay. Which waves are detected by GMRT, X-rays or radio waves? Radio waves having wavelength of more than 1 meter, ठीक है। GMRT कहाँ पे located है? पूना में, ठीक है। 30 dishes spread over a area of 25 kilometer. Dash telescope uses the electromagnetic radiations of wavelength range 400 nanometer to 700 nanometer and is launched in space. कौन सा भाई साहब होगा? This will be Hubble telescope. Identify the type of telescope as shown. ये कौन सा टेलीस्कोप है भाई साहब? Which type of telescope is this? Cassegrain telescope. आपने 3 टाइप के टेलीस्कोप्स पढ़े हैं यहाँ पे। तो एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप था जो ये नहीं है, दिस इज बेसिकली कैसग्रेन टेलीस्कोप। ये कौन सा टेलीस्कोप हो जाएगा भाई साहब? न्यूटोनियन टेलीस्कोप हो जाएगा, दिस विल बी न्यूटोनियन टेलीस्कोप। Name the following a special type of telescope used to receive radio waves emitted by heavenly bodies. क्या बोलेंगे हम इसको? चंद्रा। हाँ तो सॉरी रेडियो वेव्स, हाँ रेडियो वेव्स का क्या हो जाएगा भाई साहब? हबल नहीं,
स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप बोलेंगे. ओके. इंडियन साइंटिस्ट who have a certain X-ray telescope named after him, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. ठीक है. इंडियन स्पेस रिसर्च एंड सैटेलाइट, तो हमारा भाई साहब इसरो जो है उसने क्या क्या रिसर्च किया और सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं. दिस इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 with the aim of developing technology for making and launching of artificial satellites. Till date, ISRO has successfully launched a number of satellites. तो इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं. ISRO's programs are the most successful programs launched by independent India. तो इसरो के जो प्रोग्राम्स है वो मोस्ट सक्सेसफुल हैं. The INSAT and GSAT series of satellites support our telecommunication network, television broadcasting and meteorological services. It is because of them that telephone, television and internet services are available everywhere in the country. तो इसरो के लिए ही आज की तारीख में हम इतने स्ट्रांगली इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं. ठीक है, इतने स्ट्रांगली. It is because of them that telephone, television and internet services are available everywhere in the country. The EduSat satellite in this series is used exclusively for education. किसी ने यूज किया है भाई साहब? EduSat के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है. The IRS satellite is used for monitoring and management of natural resources as well as disaster management. तो ये आपका IRS का सैटेलाइट है जिससे हम बहुत सारे डिजास्टर्स जो होने वाले हैं, जैसे कहीं सुनामी आने वाली है, इसको हम पहले से देख सकते हैं. प्लस अगर हमको कोई नेचुरल चीज हमको कहीं पे मिल रही है जैसे गैस, ठीक है, या आपके भाई साहब ऑयल, इन सारे के रिसोर्सेज ये सब हम लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन बेसिकली लोकेट दिस. एस्ट्रोसैट in 2015, Indian Space Research Organization launched an artificial satellite called AstroSat in space. The satellite has ultraviolet and X-ray telescopes and detectors. तो इस सैटेलाइट पे भाई साहब अल्ट्रावायलेट एंड एक्स-रे टेलीस्कोप्स एंड डिटेक्टर्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द पार्ट्स यूज्ड इन दिस सैटेलाइट आर मेड इन इंडिया. ज्यादा करके ये पार्ट्स जो है तो दे आर मेड इन इंडिया. इट इज अ यूनिक सिस्टम हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीस्कोप्स ऑन अ सिंगल सैटेलाइट. तो एक यूनिक सिस्टम है, अलग अलग सैटेलाइट्स भाई साहब हैं. इंडियन साइंटिस्ट आर स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग द डेटा obtained with these telescopes. तो यूनिवर्स में भाई साहब कहाँ पे क्या अवेलेबल है, ठीक है, कैसे हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं. सो इंडियन साइंटिस्ट आर एक्सटेंसिवली लर्निंग अबाउट दिस. ठीक है. ओके, चैप्टर एट अ ग्लांस भाई साहब. टेलीस्कोप आपके, ये सब आपके टेलीस्कोप्स हो गए. रेडिएशंस, रेडियो वेव, एक्सरेज, जायंट मीटर, रेडियो वेव टेलीस्कोप, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है. ठीक है.